آج آپ کی مخالف یونین جو بنائی گئی مینجمنٹ کے کہنے پہ، وہ ویسے نہیں بنی، وہ مینجمنٹ نے آپ لوگوں کا راستہ روکنے کے لیے بنائی ہے۔ کسی بندے کے ذہن میں کوئی غلط فہمی ہو تو وہ آج دور کر دی جائے۔ اگر ان سب پہ نظر دوڑاؤ تو کوئی بھی ان میں سب ڈویژن لیول سے اوپر کا کوئی بندہ نہیں تھا، اور جو سب ڈویژن لیول بھی ہے وہ تنولی صاحب کی مہربانیاں تھیں ان پہ، ورنہ وہ سب ڈویژنوں میں بھی نہیں آ سکتے تھے۔ جو آج اسی کا اپنے موسم کا جو راستہ روکنے کے لیے وہ کھڑے ہیں، اس میں وہ ایک مورے سے زیادہ کچھ نہیں ہے، وہ ایک صرف مورا ہیں، اور پیچھے آپ کی وہ مینجمنٹ کھڑی ہے جس کے لیے یونین بنائی جاتی ہے۔ یونین کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یونین کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ مینجمنٹ کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ اور اپنے مزدوروں کے لیے مراد دو، جس کی مثال آپ کے سامنے پچھلے 24 گھنٹے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پچھلے 24 گھنٹے کے اندر دیکھو، ایک پوسٹ بنا کے لگائی گئی، اس پہ حوالہ دیا گیا جناب ڈی جی ایچ آر صاحب، جناب بی او ڈی، جناب چیف ایگزیکٹو صاحب، فلاں فلاں فلاں۔ ہم 24 گھنٹے کام کرنے کو تیار ہیں، نئی کمپنی ہے، کام کام اور کام۔ یہ کسی مزدور کی عکاسی ہے یا یہ مینجمنٹ کی عکاسی ہے؟ لہذا کسی خواب اور خیال میں نہ رہیں۔ مینجمنٹ اپنے پورے بازو سے، اپنے پوری طاقت سے آپ لوگوں کا راستہ روکنے جا رہی ہے۔ پہلے کمپنی کا جب نام پیش کیا گیا تو 2 سال تک اگر کیس عدالتوں میں تھے، اس وقت بھی اس وقت کے ٹاؤٹ ان کے ساتھ مل کے عدالتوں میں کیس کیا گیا، اور پیسہ جو لگایا گیا وہ مینجمنٹ کا اور ان ٹاؤٹوں کا تھا۔ آج وہی لوگ کسی اور روپ میں آپ کے سامنے ہے۔ مینجمنٹ وہی ہے جو آپ کا راستہ روک رہی ہے، وہی مینجمنٹ ہے جو آپ کو 24 گھنٹے کام کا کہتی ہے، وہی مینجمنٹ ہے جو آپ کو بلیک میل کر کے کہتی ہے کہ تمہیں ٹرانسفر کر دیا جائے گا، وہی مینجمنٹ ہے جو آپ لوگوں سے اضافی ریڈنگ کروا رہی ہے، وہی مینجمنٹ ہے جو کلرکوں کے اوپر ظلم ڈھا رہی ہے، ان کو رات گیر تک بٹھاتی ہے، وہی مینجمنٹ ہے جو لم سم کو بے دریغ اس قانون کے آگے پھنسا رہی ہے جس میں ایک لیٹر کیا گیا کہ یہ پول کی طرف ان لوگوں کو ایلم فاسٹ اور ایلم 2 کی طرح پول پہ چڑھا کے ان کو موت کے دریج پہ پہنچا رہی ہے۔ اس لیے آج جو پیسکو کے لیول پہ ٹیسکو اور ازیکو کا جو آج کا جو پروگرام منعقد کیا گیا، اس کا مقصد میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ پوری کا ایک ٹرائل آج سے 24 گھنٹے پہلے آپ لوگوں کے سامنے ہری پور کے اندر سرائے نمک سب ڈویژن نے وہ ادا کر دیا۔ وہ آپ لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے، جس میں میرے سب ڈویژن کا چیئرمین جناب ذوالفقار سواتی صاحب میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ حالات بہت خراب ہیں، ٹرانسفارمر جگہ جگہ جل گئے ہیں، اور صورتحال یہ ہے کہ ہمارے لائن مین تھک گئے ہیں کام کر کر کے۔ بولتے ہو تو مجھے روک کے بتاؤ۔ اس نے کہا جی روک سکتا ہوں۔ میں نے کہا کام رکوا۔ جمعے والے دن ٹھیک 4 بجے تمام لائن سٹاف نے موبائل اپنے آف کر دیا۔ اس کے بعد ایک حربہ استعمال کیا جاتا ہے کہ پرائیویٹ لوگوں کو استعمال کر دیا جائے۔ تمام پرائیویٹ لوگ جو آلریڈی وہاں پہ پہلے سے کام کر گئے تھے، اس کو استعمال کر کے باقاعدہ ہر جگہ اس کو بریک کر دیا۔ صورتحال یہ بنی، جمعے کی رات، ہفتے کا دن، اسی سب ڈویژن کے اندر چھوٹی کمپلینٹس کو چھوڑو 4 ٹرانسفارمر جل گئے۔ دنیا کا واسطہ انہوں نے لگایا ہمارے لائن سٹاف پہ۔ راج تحسین کے قابل ہیں، انہوں نے ایک ہی بات کی، کر دیا جو کچھ کرنا ہے، ٹرانسفر کر کے بتاؤ، نوکری سے نکال کے بتاؤ، جو کرنا ہے کر لو، نہیں کام کرتے۔ جو ہمارے پاس ایکس ایم این اے بابر نواز صاحب ہیں، ان کے سیکرٹری سب لوگ جانتے ہو، ہر وقت پوری سٹی کے اندر ٹرانسفارمر کے ساتھ، فالٹ کے ساتھ وہ بھاگ رہا ہوتا ہے بیچارہ۔ اس نے تمام کوشش کی کہ میں لوگوں کو لے آؤں، دلاسا دیا، دھمکی دی، سارے کام کیے۔ انہوں نے کہا جی جو مرضی ہے کر لو، نہیں آتے۔ کام سٹاپ ہو گیا، بات منسٹری تک جا رہی تھی، آپ کی انتظامیہ ساری ہل گئی۔ اگر اس دن
हमारे कायद जमील अख्तर तनोली साहब अगर हरीपुर जाके स्ट्राइक को ना खत्म करते, हरीपुर पूरा का पूरा सील होने जा रहा था। सब डिवीजन SNK ही नहीं, बाकी सब डिवीजनों के लोग भी जो हैं, जो मेरे साथ मेरी यूनियन के लोग हैं, वो आके मेरे साथ बैठ के थे। उन्होंने कहा जी अब SNK नहीं होगा, अब सिटी भी होगा, अब मंग भी होगा, अब खानपुर भी होगा, अब गाजी भी होगा, अब अतार भी होगा, अब TIP भी होगा। इन्होंने जाके कहा कि हम प्रोग्राम कर रहे हैं 22 तक रुक जाओ, अगर काम रोकना है तो फिर हम रोकेंगे पूरी हज़ारा की सतह पे, अगर काम को रोकना है तो फिर पूरे हज़ारा की सतह पे हम इसको स्ट्राइक पे लेके जाएंगे। यूनियन दोस्तों आप लोगों को नहीं कहती काम को रोको, इस बात ध्यान में रखिएगा। लोग कुछ कहते हैं ना कि यूनियन रोकती है, यूनियन नहीं रोकती, आप लोग खुद रुक जाओ, कोई बात नहीं। 9.5 घंटे कर दो, कोई बात नहीं। ज़ालिमों 10 घंटे कर दो, कोई बात नहीं। इससे ऊपर जाते हो तो अपने साथ भी जुल्म कर रहे हो, अपने माँ बाप के साथ भी, अपने बच्चों के साथ भी जुल्म कर रहे हो। यूनियन का काम बनता है उस वक्त स्टैंड लेके खड़ी हो जाए, जिस तरह हम लोग खड़े हुए हैं, आप लोगों की मिसाल सामने रखी। इन लोगों ने हिम्मत की, ये डट के हम लोगों ने इन पे स्टैंड लिया, काम को ब्रेक कर दिया, इंतज़ामिया के सामने हम खड़े हो गए। आज यही सवाल हज़ारा के अंदर तमाम मीडिएटर्स के लिए, तमाम लाइन स्टाफ के लिए ये यूनियन दोबारा रखती है। बाकी तफसील के साथ तनोली साहब आपके सामने खुद बात रखेंगे। अगर आप लोग बाबा रुकना चाहते हो तो रुक जाओ। आज का जो प्रोग्राम आपका हो रहा है, कल की डेट में CO के साथ हमारी मीटिंग थी। CO साहब ने कहा कि या प्रोग्राम करोगे या मेरे साथ मीटिंग करो। मुतालबात में सारे मानने को तैयार हूँ। हमने कहा कि नहीं, हम यूनियन का जो प्रोग्राम है उससे हटने को तैयार नहीं है। अब उसका नतीजा आप लोग सामने आ गए हो। अगर आप लोग डट के, मैनेजमेंट आपके कदमों में गिरेगी। मैनेजमेंट का ये महकमा नहीं है, ये महकमा आपका है, खून आपका लगा हुआ है, तमाम मामलात आपके लगे हुए हैं, कोई और नहीं आएगा। मीडिएटर के लिए मैं कहता चलूँ, ये जो कहते हैं कि हमें HAU दिया जाए, ये जो कहते हैं पीस ऑफ वर्क दिया जाए, जो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा काम है, मैं कहता हूँ इनको कुछ ना दिया जाए। मैं खुद एक मीडिएटर हूँ, मैं कहता हूँ इनको कुछ ना दिया जाए। वजह ये खुद अपने साथ खुद जालिम है। पूरी पाकिस्तान के अंदर जितनी भी तंजीमें मीडिएटर्स की हैं, सारी मेरे साथ अटैच हैं। आपको बताता चलूँ कि ISCO ने जब 86.9 पे स्ट्राइक करने की बात आई, उनकी लीडरशिप मेरे साथ बात करती है, तो मुझे पता है क्या कहती है कि भाई आप लोग क्या कहते हो कि इसमें हमें क्या करना चाहिए। जावेद बलोच साहब जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसमें पीस ऑफ वर्क बढ़ा दिया जाए। मैंने कहा ज़ालिमों, आप लोग ये कहना चाहते हो कि हमें पैसा दे दिया जाए तो हम और काम भी कर सकते हैं। आप पैसे पे काम नहीं कर रहे हो, ये चीज साबित करो। आप ये काम कर नहीं सकते, आपकी हैसियत से बाहर कर दिया ज़ालिमों ने। रूलर के अंदर 33 मीटर, सिटी के अंदर 50 मीटर। ये कानून हमने नहीं बनाया, ये आज का आपने नहीं बनाया। ये कानून 1978 की लॉ बुक में 1978 में बनाया गया था, ये हमारा बनाया हुआ नहीं है। हम उसको कोर्ट में चैलेंज भी कर सकते हैं, लेकिन किस वक्त? उस वक्त जब हमारा मीडिएटर मोबाइल पे 33 की बजाय 50 मीटर चेक करके मोबाइल रख दे, एरिया के अंदर 50 की बजाय वो 70 चेक करके रख दे, ना कि 500 पड़े। उस वक्त कहानी शुरू होगी इनके साथ। वरना मेरे दोस्तों, आपके सामने बात है, मैनेजमेंट का घर आप लोग चला रहे हो, मैनेजमेंट का घर पूरा है। जो आप में से मर गया, जो आप में से रिटायर हो गया, उसकी तनख्वाह बचत के तौर पे ये हमारी इंतजामिया शो करती है। हमने प्रॉफिट कमा लिया इसका, हमने इस साल इतनी बचत कर ली। और वो जो जुल्म है वो अपने ऊपर आप खुद करके दूसरे बंदे का प्रोग्राम ले रहे हो। मीडिएटर को कहा जाता है वो बंदा ट्रांसफर हो गया, वो बंदा मर गया, वो बंदा रिटायर हो गया, चलो उसका प्रोग्राम भी तकसीम कर लो। आप लोग इतने बुज़दिल हो, खुशी खुशी डर से वो मोबाइल पे दूसरा प्रोग्राम भी लोड करके काम शुरू कर देते हो। क्यों करते हो? ब्रेक करो उसको। हम खड़े हैं सामने, हम सामना करेंगे। हम देखते हैं कौन सी मैनेजमेंट हमारे सामने आके खड़ी होती है, हम उसको रोक के बताएंगे। और रोक के बताया है तो इंशाल्लाह आपकी क़यादत में कोई कमी नहीं है। दोस्तों, ये कुछ अरसा से जो गंद बना हुआ है मैनेजमेंट का, इसको रोकने का एक रास्ता है। मेरे कुछ भाइयों ने तो ये कहा, मेरे दोस्तों ने तो ये कहा कि वो सामने जो हैं उनकी हैसियत ही क्या है, वो सब डिवीजन लेवल है, वो फलां है, रेफरेंडम की जरूरत क्या है, ये आज रेफरेंडम हो गया। नहीं, मैं बात कानूनी करूँगा।
कानून ये कहता है कि अगर दूसरी यूनियन रजिस्टर्ड हो गई है, उसको हटाने का एक ही तरीका है कि आपका रेफरेंडम होना चाहिए। क्या आप लोग इस गंद को हमेशा के लिए, जो मैनेजमेंट के टाउट हैं उनको हमेशा के लिए हटाने के लिए इस बात पे राजी हो? फिर हाथ खड़ा करके मेरे कायद ने आज ये लेटर मुझे दे दिया है कि मैं डायरेक्टर लेबर को ये लेटर दे दूं, हमें डेट दो रेफरेंडम के लिए। तो आप लोग कहते हो मैं इस रेफरेंडम को नहीं मानता, मैं उस रेफरेंडम को मानता हूं जब उनके मुंह पे पड़ेगी, जब वो बक्से खुले, उनको ये पता चले कि हमारी हैसियत क्या है, उस वक्त आपका एहतियात सामने आए, उस वक्त पता चले 24 घंटे कौन काम करवाना चाहता है, उस वक्त आपको पता चले इस तरह पंडालों में आपको बिठा के 8 घंटे पे कौन लाना चाहता है, उस वक्त आप लोगों को पता चलेगा आपके बीवी बच्चों का कौन खैर हुआ है, उस वक्त पता चलेगा आप लोगों के माँ और बाप के आंसुओं का कौन खैर हुआ है। जो सब डिवीजन जानते हैं आप लोग, जिन जिन सब डिवीजनों में हादसात हुए हैं, मेरे दोस्तों भाइयों, वहां देखो। और जब वो बंदा हमारे टाइमों में भर्ती हुआ, कुछ मेरे दोस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं जो मेरे हाथ से हुए, कुछ ऐसे दोस्त जो मेरे बुजुर्गों के हाथों से, जो मेरे सीनियर लोग हैं उनके हाथों से हुए, उस बंदे की भर्ती से लेके उसके सर्विस के दौरान मैनेजमेंट के साथ झगड़ों से लेके, और जब वो रिटायर होता है, जब वो डेथ हो जाती है, वहाँ पे मैदान में कौन खड़ा होता है, ये फैसला आप लोगों ने करना है, ना कि ऐसे मैनेजमेंट के टट्टू आके आप लोगों को वरगला के एक ऐसी सिमत पे लेके जाएं जहाँ पे कहा जाए नहीं काम और हम 24 घंटे काम करने को तैयार हैं, नई कंपनी है, नहीं आप लोगों की यार्डस्टिक को ठीक किया जाए। नई कंपनी के अंदर ये वो टाइम है जब आप लोगों के नए सब डिवीजन और सर्कल बनाए जाएं, ये वो वक्त है भर्ती का तयन किया जाए, ये वो वक्त है जब आपके मोबाइलों का तयन किया जाए, ये वो वक्त है जब आप लोगों के कंप्लेंटों का तयन किया जाए, ये वो वक्त है जब इंतजामिया को झंझोड़े जाए कि आंखें खोलो, इस तरह कंपनी नहीं चलती। और फिर आज जो लोग दावेदारी कर रहे हैं, आप लोग सब जानते हो उनका कितना किरदार है इस कंपनी को बनाने में। 2 सर्कलों पे कंपनी बना दी गई, पाकिस्तान में एक अनोखा रिकॉर्ड है, ये कभी नहीं हुआ कि 2 सर्कलों में कंपनी बना दी जाए। और मैं उससे भी पहले जाता हूँ, 2016 से पहले ये एक ही सर्कल है। इस वक्त आप लोग 1800 हो, आपको तादाद का अगर पता हो तो सिर्फ 1800 पे कंपनी बना दी गई, लेकिन उसके पीछे किसी का खून जला हुआ है, किसी का पैसा लगा हुआ है, किसी का वक्त लगा हुआ है, उस पे अपने बच्चों का वक्त काटा हुआ है। मैं तो आज हमारा बच्चा वो बैठा हुआ है जलाल, मैं तनोली साहब को ये कहता होता हूँ, तनोली साहब बस करो, ये जलाल का हक मार रहे हो, जो आपकी घर में आपकी बीवी है उसका हक मार रहे हो। ये हंसते रहते हैं मेरे आगे, फिर मुझे कहते हैं यार मुझे बताओ इन लोगों का क्या बनता है। जब मैं लीडरशिप का बात की, जब उन लोगों के सामने घुसा जाए तो मैं अपने बच्चों को देखूँ, खून जलने का वो तमाशा कि जो आपके सामने आज एक सर्कल पे कैंपी बना दीजिए, ना कि जो लोग आज दावेदारी कर रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा हैं और मैनेजमेंट का साथ देंगे। देख लो वो कितने हैं, उन्होंने कितना साथ दिया। बातें तो बहुत ज़्यादा थी कानून के मतलब भी बताने की, लेकिन ज़ाहिर है टाइम ज़्यादा हो गया। इसी तरह एहसास है कि आप लोग बोर हो चुके हो, काफ़ी टाइम से आप लोग बैठे हुए हो, गर्मी भी है, प्यास भी है। मेरे दोस्तों, आखिरी बात यही है, आप लोग रेफरेंडम की तैयारी करो। आप लोगों ने अप्रूवल दे दी, मेरे कायद ने मुझे लेटर दे दिया, कल इंशाअल्लाह ये लेबर डायरेक्टर को दे रहा हूँ और उनसे हम रेफरेंडम दे रहे हैं। वो 1 महीने का टाइम मिलता है, 10 दिनों का टाइम मिलता है। आप लोग तैयारी रखो। आपने हर उस शख्स को हराना है जो आपका, आपके बीवी बच्चों का, आपके भाइयों का, आपके आने वाली नस्लों का जो दुश्मन है उसको हटाना है। इन मैनेजमेंट के टोटों को साइड पे करना है। ऐसे लोगों को अपने दरमियान मत आने दो। आज आप लोगों ने साबित कर दिया आप हक और सच को समझते हो। आज आपने साबित कर दिया सच्चाई क्या है। मैं इसी पे आप लोगों को एक दफ़ा सलाम करता हूँ। अल्लाह पाक आपको इसका जज़ाए खैर दे। आप हक वाले लोग हो। मैं आखिर में एक नारा लगाना चाहता हूँ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। पाकिस्तान हज़ारा कंपनी